Dear students, good morning to all of you. Today we will read about the writing skills. You already know writing skill is must for all in the higher classes. In the higher classes, because the maximum marks contain or depend in writing skills. Writing skills there are in 4 sections in your paper. First number section A, second number section B, third number section C, and fourth comes section D. Section A comes under a reading skill, section D comes under a writing skills, section C comes under a English grammar, and fourth section D comes under a textual exercise. So I want to inform and suggest to all of you, my dear student, you must have to pay attention due to writing, because writing is must. The reading skill are given in section A. I have said to you, the writing skill are given in section B. The grammatical uses are in section C. The textual exercise given are in section D. Your paper totally depend on your writing skills. If you have a better knowledge about in writing skills, then you can get good marks in the examination. Therefore, you must have to learn how to write. Write means राइट. इसका मतलब ये हुआ है कि आप लिखावट कितना अच्छा करेंगे, कितना ठीक ठाक करेंगे, इट इज कॉल्ड राइट. ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि राइटिंग स्किल में क्या कैसे होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू मस्ट हैव टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड हैव टू ऑब्टेन गुड मार्क्स. आई विश. यस. और अब हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए, देयर आर इन मेनी फॉर्म्स कम्स राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल कम्स इन many forms or types or concept point. जैसे ठीक है, नोटिस, लेटर, एडवर्टाइजमेंट्स, आर्टिकल्स, एसेस, नोट मेकिंग, मैसेज,
messages, reports, and telegrams, etc. तो बेटा ये जितना भी लिखा है, नोटिस, लेटर, एडवर्टाइजमेंट्स, आर्टिकल्स, एसेज, नोट मेकिंग, मैसेज, रिपोर्ट्स एंड टेलीग्राम एक्सेट्रा, इतने जो है होते हैं आपके, है ना। इसमें से फर्स्ट आई वांट टू टॉक टुडे अबाउट द नोटिस। Notice. First question stand. What is notice? Notice is an information or instruction or warning given in advance about something that is going to happen in future. It is a short piece. It is a short piece of writing written usually in a formal or informal style. देखो, चाहे नोटिस हो, चाहे लेटर हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे आर्टिकल्स हो, चाहे ऐसे हो, सारे जो है written in two types of formal and informal types of. ठीक है। अब how to write an effective नोटिस। तो हम नोटिस को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है जरूरी है। एन इफेक्टिव नोटिस is an art which can be mastered with continuous practice. Mastered with continuous practice. It should be accurate, brief, and clear. It is must before writing and paying attention due to writing notice, letter, advertisement, articles, essays, note making, message, report or telegram, etc. for all. First have to write now. I have to inform about the structure. How can I write about this? How can make structure of this? How can I make this
फॉर्मेट। आपको सबसे पहले ये जरूर से पता रहना चाहिए कि हम इसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। फॉर्मेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बड़ा फॉर्मेट बनाते हैं। बड़ा फॉर्मेट के बाद जो है इसमें सबसे पहले आता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस और ऑफिस फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे जो हम लिखते हैं उसको हम वहाँ पे उसका जो ये रहता है क्या बोलते हैं डेट, इशू डेट, कब ये इशू किया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर थर्ड नंबर पे हम लिखते हैं इसका टाइटल, नोटिस का टाइटल क्या है, मैटर क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम लिखते हैं इसका जो है सूटेबल आई कैचिंग हेडिंग जो होती है, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम आपको भी बता रहे हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे रहता है। इसके बाद फिर हम इसमें ये ऊपर वाले में ये जो फर्स्ट नंबर पे है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे हम लिखते हैं डेट, ठीक है, और यहाँ लिखा रहेगा आपका डेट। डेट हो गया यहाँ तक मान लीजिए आप। यहाँ लिखेंगे क्या नोटिस। ये जरूरी है। इसके बाद जो हम लिखते हैं फिर यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे हेडिंग रहेगी, हेडिंग में रहेगा सब्जेक्ट, हेडिंग या सब्जेक्ट ये है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे ये जो होता है इसमें जो मैटर रहता है पूरे मैटर को हम स्टेटमेंट देते हैं। जो भी इसमें लिखा जाता है स्टेटमेंट्स, शॉर्ट स्टेटमेंट्स। शॉर्ट स्टेटमेंट्स कितना रहता है 30 to 60 वर्ड्स रहता है, इससे ज़्यादा हमको नहीं लिखना रहता है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में हम यहाँ डाल सकते हैं आपको ये सिग्नेचर। यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। सिग्नेचर मान लो जो भी जिसका भी सिग्नेचर हो जाएगा। सिग्नेचर के बाद फिर यहाँ लिखेंगे हम डेट। डेट के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लेस या डेट। It is must to provide this type of structure। अगर आपको पेपर में अच्छा मार्क्स पाना है और आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है कि नोटिस हमको कैसा लिखना है कैसा नहीं लिखना है, अगर हम ऐसा भी कर देंगे तब भी हमारा क्या होगा अच्छा मार्क्स आएगा। ये बहुत ही जरूरी है। ये आपका हो गया राइट।